Guys, welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. So, do you remember what we have read yesterday? What we have learned yesterday? Yes, we were reading Can We Change This? That is an extract taken from Karaku and it is written by Bamas, right? We have seen how the narrator, the writer of this story, felt disguised with the nature of Palas and Nikers, which were called to be the upper class people. The way they treated the pariahs from which the narrator belongs were so bad. She felt so inhuman. That's why she was, like infuriated with such an act which was not acceptable and that was continuously going on in that village, or you can say in that area. So we are going to go through the second part of this story. Now let us start reading the second part of this story. Now, she says, both my grandmothers worked as servants for Niker families. In the case of one of them, when she was working in the fields, even tiny children born the other day would call her by her name and order her about just because they belonged to Niker caste. And this grandmother, like all the other laborers, would call the little boy Aya, master, and run about to do his bidding. It was shameful to see them do this. Even the way they were given their drinking water was disquieting to watch. The Niker woman would pour out the water from a height of 4 feet, while a Pati and the others received and drank it with cupped hands held to their mouths. I always felt terrible when I watched this. Students, you can see here how the old woman is drinking the water and how the Niker women are pouring the water to fetch them water, to give them water. In this part, in this para, narrator बोलती है कि उसको बुरा लगता था, उसको बहुत बुरा लगता था. एक चीज़ रहे तब तो बहुत सारी बातें थी जिसको देख करके वो बुरा फील करती थी. उसमें से एक उसने छोटी सी जो है कहानी शेयर करी है कि कैसे जो उनकी दो ग्रैंड मदर थी, उसकी दोनों नाइकर फैमिली के लिए जो है सर्वेंट के तौर पे काम करती थी. और जब खेतों में वो काम कर रही होती थी तो इवन जो छोटे छोटे जो बच्चे होते थे उनके, जो अभी कुछ दिन ही पहले अभी बोलना सीखा होगा उन्होंने, वो भी उसको उस बूढ़ी औरत को जो है उसके नाम से बुलाया करते थे. और ऐसा क्यों? क्योंकि वो बड़े मतलब बड़े घराने से थे, बड़े घर के थे, नाइकर कास्ट से थे, दैट्स वाई. और उसकी जो दादी माँ थी वो भी उसको मास्टर कह के बुलाया करती थी, जैसे कि अदर लेबरर्स बुलाया करते थे. और जैसे ही वो आवाज़ देता था तो उसको दौड़ के जाना और उसके काम को कंप्लीट करना, ये उनका हैबिट हो गया था. तो ये सब देख करके उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी. और वो बोलती है कि उसको ज़्यादा जो है डिस्क्वाइटिंग मीन्स disquieting is like you can call including feelings of anxiety or worry. ऐसा मतलब आपको महसूस होगा कि जैसे आपको अलग कर दिया गया. तो जैसे पानी पिलाया जाता था उसको देख करके बहुत ज़्यादा उसको अलग सा महसूस होता था.
You can see here in the picture, right? Now, my other Pati was the same. As soon as dawn broke, she would go to the Naikar houses, sweep out the cowshed, collect up the dung and dirt, and then bring home the leftover rice and curry from the previous evening. And for some reason, she would behave as if she had been handed the nectar of the gods. दूसरी पाती के बारे में बताती है कि उसके दूसरी जो पाती है, उसकी जो दूसरी दादी अम्मा है, वो भी ऐसे ही जब जैसे वो डॉन ब्रेक होता था तो वो नाइकर के घर पे जाती थी और जा कर के काउ शेड जो है वो गौशाला होता है जहाँ पे गाय को रखा जाता है, वहाँ से डंग मीन्स गोबर और गंदगी को साफ़ करती थी। और साफ़ करने के बाद सारा काम ख़त्म करने के बाद जो बचा खुचा चावल और कड़ी जो होता था वो भी पिछले इवनिंग का, नॉट फ्रॉम द सेम डे, पिछले इवनिंग का, उसको वो खाने के लिए लाती थी। और कभी कभार उसको ऐसा महसूस, वो भी खाना जो मिल जाता था उसको ऐसा लगता था जैसे उसको गॉड के पास से नेक्टर मिल गया है। वो नेक्टर, डू यू नो व्हाट इज़ नेक्टर? जो जूसी होता है, रसों से भरा होता है। शी वॉज हैविंग दैट काइंड ऑफ फीलिंग। It was a long time before I realized that the Pati was bringing home the unwanted food that the Naikar were ready to throw away. One day I went with Pati to the Naikar house after she had finished all her filthy chores. Pati placed the vessel that she had brought with her by the side of the drain. The Naikar lady came out with her leftovers, leaned out from some distance and tipped them into Pati's vessels and went away. Her vessel, it seemed, must not touch Pati's. It would be polluted. Sometimes later, I said to Pati, she should not lay herself open to such behavior. It was ugly to see. What Pati said to me in return was this: these people are Maharajas who fed us our rice. Without them, how will we survive? Haven't they been upper caste from generations to generations? And haven't we been lower caste? Can we change this? In this para, the narrator is sharing one again short story which she has experienced, जो कि उसने एक्सपीरियंस करा, अपने आँखों से देखा है, आँखों के सामने देखा है। दैट वाज कि वो जो खाना लेके आती थी पाती, एक्चुअली वो अनवांटेड फूड होता था जिसको कि नाइकर्स लोग फेंकने जा रहे होते थे। बट ये फेंकने के बजाय इनको दे दिया जाता था ताकि ये लोग कुछ खा लें। उसी में से एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी शेयर कर रही है वो कि एक दिन एक बार पाती के साथ वो जाती है नाइकर के घर, जहाँ पे सारे जो काम है वो कंप्लीट करने के बाद पाती को जो है अपना बर्तन रखना पड़ता है जिसमें वो खाना बचा हुआ जो अनवांटेड फूड है लेके आती है उसको रखना पड़ता है। और उधर से नाइकर की जो लेडी होती है वो आती है और बचा खुचा जो खाना होता है वो भी ऊपर से ऐसे फेंक के देती है, लीन मतलब थ्रो करके देती है, ऊपर से टिप्ड करती है, गिराती है, ताकि जो है वो नाइकर का जो वेसल है वो पाती से टच ना हो जाए। उनका ये मानना था कि वो टच हो जाएगा तो वो भी पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो इस बात पे जो है वो नरेटर अपने पाती से क्वेश्चन पूछती है कि ये कितना गंदा दिखता है, कितना बुरा बिहेवियर ये लोग का है, ये मतलब आपको महसूस नहीं होता है? आप क्यों इन लोगों के लिए जो है ऐसे खुद को गिरा के रखते हो? इन सवालों के जवाब में पाती जो उससे पूछती है और जो बताती है वो ऐसा है कि ये लोग जो है महाराजाज रहे हैं जिन्होंने हमें खाना खिलाया है, जिन्होंने हमें खाना खिलाया, इनके वजह से हम जिंदा हैं।
और ये अगर नहीं होंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? क्या ये सही नहीं है कि जनरेशंस टू जनरेशंस अमीर रहे हैं, अपर कास्ट में रहे हैं, और हम लोग जनरेशंस टू जनरेशंस गरीब रहे हैं, लोअर कास्ट में रहे हैं? क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? कैन वी चेंज दिस? दिस वॉज द आंसर ऑफ पाती. माई एल्डर ब्रदर who was studying at a university came home for the holidays. He would not often go to the library in our neighboring village in order to borrow books. He was on his way home one day, walking along the banks of irrigation tank. One of the Niker men came up behind. He thought my Anand looked unfamiliar, and so he asked, "Who are you, Appa? What is your name?" Anand told him his name. Immediately the other man asked, "Thambi, on which street do you live?" The point of this was that if he knew on which street we lived, he would know our caste too. Anand's reply was sharp, like a slap in the face. "I am a pariah from the Cherry Street." Then he stalked off as fast as he could. Niker was furious. He thought he had been humiliated. He asked someone else there, "Who is this fellow? Look at the way he talks." This other man explained who Anand was by mentioning Apati. "Oh, that is Rakama's grandson." And this para, the narrator is sharing a story about his elder brother. एक छोटी सी स्टोरी है उसके एल्डर ब्रदर के बारे में, जो कि बतलाती है उसमें कि उसका बड़ा भाई जो है कैसे जो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है, और जब वो घर वापस आता है तो उसको लाइब्रेरी जाना होता है, और लाइब्रेरी जो है उसके बगल के पड़ोस के गांव में है, वहाँ से एक बुक लेने जाता है, और जब वो घर वापस आ रहा होता है बुक लेकर के, तो जो इरिगेशन टैंक है जो उसी से जो नहर कह सकते हैं, इरिगेशन टैंक इज कॉल्ड द नहर, जिससे कि खेतों की सिंचाई होती है, तो उससे चल के आ रहा होता है, और उसी के पीछे पीछे एक नाइकर मेन जो होता है, नाइकर आदमी जो होता है, आ रहा होता है, और उसका चेहरा थोड़ा सा अनफैमिलियर लगता है। जो नरेटर का ब्रदर है उसका चेहरा थोड़ा अनफैमिलियर लगता है, तो उससे पूछता है कि हु आर यू अपा? अपा मीन्स हियर जो एक जनरल टर्म है एड्रेस करने का, एक जनरल कॉमन सा नेम होता है, लैंग्वेज होता है। और थाम्बी का मतलब होता है तमिल वर्ड ऑफ यंगर ब्रदर, यूज्ड हियर एज अ टर्म ऑफ एड्रेस। ओके, एंड और तो कुछ ऐसा है नहीं। फिल बी देयर, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो वो उससे पूछता है तुम कौन हो और अब तुम्हारा नाम क्या है? तो अनान जो है उसको अपना नाम बतलाता है, और उसको बतलाता है, वो साथ में ये भी पूछता है तुम किस गली में रहते हो, राइट। तो अनान जो है वो अपना, ताकि उसको ये पता चल जाए कि वो पल्लवाज का है या फिर पालाज का है, या फिर दूसरे गली परायाज का है। तो उसका भाई भी उसी तरीके से जवाब देता है, बोलता है कि मैं पराया का हूँ और चेरी स्ट्रीट में रहता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली जिस तरीके से वो जवाब देता है वो उसको बुरा लग जाता है, उसको उसके चेहरे पे एक थप्पड़ के जैसा महसूस होता है, और वो उसको घूरने, स्टॉक्ड का मतलब होता है, स्टॉक्ड मीन्स लाइक वॉक्ड इन अ प्राउड और एंग्री मैनर, तो बता के ऐसे अकड़ के चला जाता है, राइट। तो ये उसको जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, और वो पूछता है कि उसको ऐसा लगता है कि उसको ह्यूमिलेट किया गया। तो वहाँ पे एक और दूसरा व्यक्ति खड़ा रहता है, उससे वो पूछता है कि ये कौन है ये आदमी? तो वो बताता है उसके बारे में, अनान के बारे में,
और उसके दादी के बारे में बताता तो बोलता अच्छा रकमाज का पोता है। फिर उसके बाद द नेक्स्ट डे व्हेन पाती वेंट टू वर्क द नाइकर स्पोक टू हर एंग्रीली, हाउ डेयर योर ग्रैंडसन टॉक टू मी सो एरोगेंटली। पाती मैनेज टू हैंडल इट बाय सेइंग सी आया, he is an educated lad. This college boy will talk like that. When Anand heard this, he just laughed. Apparently, it was just the same at the library. They would look at the pariah lads from Cherry Street in a certain way with contempt. Once, when Anand was singing out his book, he added his title, MA, on a sudden impulse. Immediately, the attendant brought him a stool to sit and, what is more, began addressing him as sir. फिर दूसरे दिन की कहानी बतलाती है कि जब दूसरे दिन पाती काम करने जाती है तो नाइकर बहुत गुस्से के साथ में उससे बात करता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पोते का इतना हिम्मत कैसे हुआ कि वो मेरे से इतना एरोगेंटली बात करे। तो पाती उसको थोड़ा बातों में बहला करके कि मालिक कैसा है कि वो पढ़ा लिखा लड़का, लैड मीन्स लड़का, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लड़का है, और कॉलेज में लोग ऐसे ही बोलते हैं। कॉलेज में तो आप उससे अगर पूछोगे तो ऐसा ही जवाब आपको देगा, दिस कॉलेज बॉयज़ विल टॉक लाइक दैट, आप ऐसे ही बोलेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप उससे कुछ ना बोलो। शी इज़ रिक्वेस्टिंग। तो इस बात को जब आनंद घर पे आके जब पाती बताती है तो सुनता तो बहुत हंसी आती है उसको। और सेम उसी तरीके से सेम अगेन इस तरीके से लाइब्रेरी में होता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग होता है इस बार। दे वुड लुक एट द परायाज लैड फ्रॉम द चेरी स्ट्रीट इन अ सर्टन वे, कुछ अलग तरीके से वो देखते हैं घूर करके, और कि अच्छा तुम ये लोग इतना आगे बढ़ गया लाइक दैट। एंड कंटेम्प्ट मीन्स द फीलिंग दैट समवन इज़ नॉट वर्थ एनी रिस्पेक्ट। कंटेम्प्ट मीन्स उल्लंघन करना, तिरस्कार करना। ओके फिर उसके बाद एक घटना घटती है जिसमें आनंद जो है वो कुछ बुक वगैरह साइन कर रहा होता है, ले रहा होता वहाँ से। तो वो जो है अपना टाइटल लिखता है और उस पर लिखता है कि एमए मीन्स मास्टर्स इन आर्ट। और ये उसको एक सडन सा इम्पल्स देता है, जो वहाँ पे अटेंडेंट होता है वो एक सडन सा इम्पल्स देता है, बिकॉज इतना पढ़ा लिखा इंसान उस विलेज में बहुत कम लोग होते थे। और जो जब वो देखता तो उसके लिए जल्दी से दौड़ के जाता, एक टेबल लेके आता और उसको बोलता, उस पर बिठाता, बिठाने के बाद बोलता है हाउ कैन आई हेल्प यू सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, वहाँ से लाइक दैट ओनली। सो गिविंग रिस्पेक्ट, दैट टाइप ऑफ थिंग हैपेंड देयर। Now Anand told me all these things and he added, because we are born into the pariah jati, we are never given any honor or dignity or respect. We are stripped of all that. But if we study and make progress, we can throw away these indignities. So study with care, learn all you can. If you are always ahead in your lessons, people will come to you of their own accord and attach themselves to you. Work hard and learn. The words that Anand spoke to me that day made a very deep impression on me, and I studied hard with all my breath and being in a frenzy almost. As Anand has urged, I stood first in my class, and because of that many people became my friends. फिर जो है आनंद वापस आता है उधर से, तो वो सारी कहानी अपने सिस्टर से शेयर करता, और वो बोलता है कि बिकॉज़ हम लोग पराया जाति में जो है हमारा जन्म हुआ, तो इसलिए हमें वो सम्मान, हमें वो डिग्निटी जो है हमें वो मिल नहीं पाता है। हम लोगों को इसको स्ट्रिप्ट करना है, इसको उखाड़ के फेंकना है, इस सोच को उखाड़ के फेंकना है, और उसके लिए क्या करना है, पढ़ाई करना। हम लोग पढ़ाई करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद ही हम लोग जो इंडिग्निटीज़ है उसको हम लोग हटा सकते हैं। जाति हियर मीन्स यू कैन से कास्ट और सब कास्ट, और इंडिग्निटीज़ का मतलब होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ और सर्कमस्टांसेस दैट काउज वन टू फील शेम और टू लूज वंस डिग्निटी।
तो ये सारी बातें बतलाता, और उसके बाद से उसके भाई के कहे गए जो शब्द हैं वो उसको गांठ बांध लेती है, और वो काफ़ी गहरा प्रभाव छोड़ता है उसके ऊपर, वेरी डीप इम्प्रेशन छोड़ता है। और उसके बाद से वो काफ़ी मेहनत से पढ़ाई करती है, और जब वो अपने क्लास में फर्स्ट आती है तो बहुत सारे लोग जो है उसके दोस्त बन जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव read the second part of this story, and I believe you have understood this story completely. Now we'll meet in the final part of this story. Till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you.